Okay. So the lecture is focused on excess cavity preparation. When I use the word excess cavity, excess, हम कहाँ पे excess gain करना चाह रहे हैं excess cavity बनाने के लिए? जी. Floor of the pulp is deeper. हमें उसके अलावा किसी और थोड़ा सा ऊपर आए एनाटॉमिकली किस जगह हम एंटर होना चाह रहे हैं कि अपनी एक्सेस कैविटी हम बनानी है, यानी एक्सेस का मतलब होता है पल्प चैम्बर. वेरी नाइस. और पल्प चैम्बर में हम वंस वी हैव एंटर्ड द पल्प चैम्बर, तो उसके बाद हमने कहाँ जाना है? पल्प चैम्बर में हम आ गए, ठीक है. और कैनाल, जो रूट कैनाल्स होते हैं उनकी एंट्रेंसेस को क्या बोलते हैं? अभी आपने नहीं बताना. लेट मी आस्क समवन. Orifice. Orifices. वेरी नाइस. ठीक है. सो व्हाट इज एक्सेस कैविटी? Excess cavity is actually to gain access into the pulp chamber and ultimately into the root canals through canal orifices. Okay, this is the simpler definition. In the books, you would find the complete definition, but in order to understand the excess cavity, this definition is more than enough. Okay, so let's move forward. It is the first and most important phase of root canal treatment. Yani, if we talk about the excess cavity, so even the success of the root canal is dependent on the excess cavity, because sometimes due to improper excess cavity preparation, we might end up with the failure of the root canal. So a good excess cavity leads to a good treatment. So in order to show you this pyramid is to tell you the steps. सबसे पहले हम excess cavity बनाते हैं, ठीक है. Then after gaining access into the root canals, we determine the working length of the root canals. Working length root canal की determine हो गई, उसके बाद we perform cleaning and shaping, ठीक है, and then ultimately obturation. So basically excess cavity is the first step in the root canal treatment. Okay, as you can see in this picture, you are already well aware of this picture. I have shown you this multiple times. What is this? इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? ये जो है, जी, इसे पल्प चैम्बर कहते हैं. अच्छा, पल्प चैम्बर की एक्सटेंशंस हो रही हैं ऊपर, ये इन्हें कहते हैं पल्प हॉर्न्स, ठीक है. अच्छा, अब अल्टीमेटली पल्प जो है, पल्प इज आल्सो फिलिंग दी रूट कैनाल्स, ठीक है. रूट कैनाल्स के अंदर भी पल्प होता है, सिर्फ पल्प चैम्बर में पल्प नहीं होता. लेकिन रूट कैनाल की एंट्रेंस को हम कहते हैं ओरिफिस, ठीक है. ये हमारी मेन रूट कैनाल है. ये समटाइम्स देयर आर रेमिफिकेशंस कमिंग फ्रॉम द मेन रूट कैनाल, उसे हम लेटरल कैनाल्स भी कहते हैं. और ये एंड पे हमारा एपिकल फोरामेन. सो बेसिकली दैट पोर्शन ऑफ द पल्प, this portion of the pulp is known as coronal pulp, and this portion of the pulp is known as radicular pulp. तो अब मुझे मरियम अजीज कुरैशी बताएंगी कि द प्रोसीजर इन विच वी रिमूव ओनली द कोरोनल पल्प, उसको क्या कहते हैं? हमने सिर्फ कोरोनल पल्प को रिमूव कर दिया, रेडिकुलर पल्प को रिमूव नहीं किया. उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? Sir, obturation. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं कहते. हमने क्या सिर्फ कहेंगे? कोरोनल पल्प को रिमूव किया. ओके, लेट मी आस्क समवन एल्स. Pulpectomy, sorry, pulpectomy. गलत, पल्पेक्टमी भी नहीं कहते. सना अकबर, आप बताएं. We are only removing the coronal pulp, but we are preserving the radicular pulp. अमीर हमजा, आप बताएं. RST. अमीर हमजा, आप बताएं. हमने कोरोनल पल्प को रिमूव किया, रेडिकुलर पल्प को प्रिजर्व कर लिया. What do we call this procedure? जी आप बस जल्दी बताएं. आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं प्लीज.
नहीं, पल्पेक्टमी नहीं कहते. Okay, let me tell you the procedure in which we are removing only the coronal pulp. सिर्फ coronal pulp हमने remove कर दी है. Mostly young patients में, child patients में हम करते हैं procedure. That procedure is known as pulpotomy. अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसको याद करना. We are removing the coronal pulp while we are preserving the radicular pulp. This is known as pulpotomy. But the procedure in which we are removing the coronal pulp as well as the radicular pulp, उसे हम कहते हैं pulpectomy. और मरियम, आप obturation कह रही थी. Obturation is the last step of the root canal in which वो मुंह से निकल गया. ऑब्जर्वेशन नहीं होता है. इट्स पल्पेक्टमी और पल्पेक्टमी. सॉरी सर. obturation is the last step of the root canal in which we fill the root canals. यस सर. यस सर. यस सर. सॉरी. Okay, so in order to make the excess cavity, we need to be aware of the certain laws, because if we don't know the laws, we cannot make the proper excess cavity. ये आप लोगों को laws already पढ़ाए हुए होंगे, लेकिन just for the purpose of learning ये आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये important है बहुत. Law of centrality. The pulp chamber is always located in the center of the tooth at the level of the cemento enamel junction. अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है. सीमेंटो इनेमल जंक्शन जो है, जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है, सीमेंटो इनेमल जंक्शन. अच्छा, सीमेंटो इनेमल जंक्शन से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी जो मैंने एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी में बताई थी. एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी में सीमेंटो इनेमल जंक्शन कैसे अपीयर होता है? एक यहाँ पे चीज़ अपीयर हो रही थी, रेडियोल्यूसेंट एरिया, इस एरिया में. जी महरोज, आप बताएं. जहाँ पे वो सर्वाइकल बर्नआउट होता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है. अच्छा, बेसिकली हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पल्प चैम्बर होता है ना, उसका लेवल कहाँ पे होता है. इट इज़ ऑलवेज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द सीमेंटो इनेमल जंक्शन. तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमने कितनी डेप्थ में जाना है. सीमेंटो इनेमल जंक्शन जो होता है वो हमें ये चीज़ क्लियर कर देता है कि जी हमने पल्प चैम्बर हमारा सीमेंटो इनेमल जंक्शन पे. अच्छा जी, द सेकेंड लॉ इज कि जो सीमेंटो इनेमल जंक्शन होता है ना, ये मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेबल लैंडमार्क होता है. मतलब सीमेंटो इनेमल जंक्शन का लेवल जो है वो चेंज नहीं होता, वही रहता है. तो इसको हम मोस्ट कंसिस्टेंट लैंडमार्क कह सकते हैं फॉर द एक्सेस कैविटी प्रेपरेशन. अब आप लोग मुझे ये बताएं, यहाँ तक समझ आ गया आप सब लोगों को, या मैं, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज टेल मी. जी, इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, लॉ ऑफ कलर चेंज, अनदर इम्पॉर्टेंट लॉ. द पल्प चैम्बर फ्लोर. हुजैफा, आप पल्प चैम्बर का फ्लोर का बता रहे थे मुझे. पल्प चैम्बर का जो फ्लोर होता है ना, इट इज ऑलवेज डार्कर इन कलर. आप देख सकते हैं कि जो है ना ग्रेइश, इसमें ग्रेइश कलर है, ठीक है. और आप वॉल्स को देखें, वॉल्स आर स्लाइटली लाइटर इन कलर while the pulp chamber floor is darker in color. ठीक है. So this is the law of color change. Now coming to the law of symmetries. First law of symmetry. Now the first law of symmetry is not applicable to the maxillary molars. That's why we have mentioned except for the maxillary molars. Canal orifices are equidistant from a line drawn in a mesiodistal direction through the center of the pulp chamber. अच्छा जी. Now look at this picture very carefully. This is the mesial side, this is the distal side. अब अगर हम mesiodistally एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये देखें. अब आप देख सकते हैं कि ये वाला ओरिफिस और ये वाला ओरिफिस ये सेम डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम डिस्टेंस है. ठीक है. इसी तरह ये ओरिफिस भी सेम डिस्टेंस पे होते हैं. समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. यानी ये डिस्टेंस जो है ये भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी ये डिस्टेंस भी सेम है.
मतलब अगर हमने if we draw a line from a mesial to the distal aspect of the tooth, we can see that the orifices are equidistant from these lines. Second law of symmetry. Now the second law of symmetry is now also not applicable to the maxillary molars. The canal orifices are lie on a line perpendicular to a line drawn in a mesiodistal direction. Mesial aspect, distal aspect. ये देखें, परपेंडिकुलर होंगे orifice, ठीक है. यहाँ से भी परपेंडिकुलर है at an angle of 90 डिग्री, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है. मेसियोडिस्टली हमने लाइन को ड्रॉ किया और उसके बाद हमने क्या किया कि वी हैव सीन that or this orifice is perpendicular to this line, this orifice is perpendicular to this line. लॉ ऑफ सिमेट्री समझ आ गए सबको या कोई कंफ्यूजन है? जी Yes. नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन. इसमें द लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन इट टेल्स अस कि जो फ्लोर होता है ना हमारी एक्सेस कैविटी का और वॉल होता है, फ्लोर क्या है? पल्पल फ्लोर, और हमारा साइड पे वॉल्स हैं, मीजल वॉल है, डिस्टल वॉल है या बकल वॉल है, जो भी है. फ्लोर और वॉल के जंक्शन में हमारे ऑरिफिस पड़े हुए होते हैं, ठीक है. एट द जंक्शन ऑफ फ्लोर एंड वॉल, the orifices, the canal orifices are located at the junction of the floor and wall. Second law of orifice location. अच्छा, सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि फ्लोर और वॉल जंक्शन में तो पड़े हुए हैं, लेकिन जो orifices हमारे which are lying at the junction of floor and wall, they lie at a particular angle. Now look at this. ये जो orifices है ना हमारे, they are lying at a particular angle, they are making a particular angle with the floor, ठीक है. ये एक एंगल बना रहे हैं फ्लोर के साथ, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहे, ठीक है. द पर्पस ऑफ ड्राइंग दीज लाइंस टू शो यू कि बिल्कुल कैनाल ऑरिफिसेस सीधे नहीं जाते, एक एंगल बनता है हमेशा, ठीक है. और ये एंगल आपको किस तरह पता चलता है? व्हेनेवर यू इंसर्ट अ फाइल इनटू द ऑरिफिस, तो उसका भी एक एंगल बन रहा होता है फ्लोर के साथ, ठीक है. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल सीधी जाए फाइल, तो उसका भी एक स्लाइटली सा एंगल बनता है ज़रूर. थर्ड लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन. Those of you who have performed an excess cavity preparation, they might have seen that there are certain lines which are present on the floor of the pulp chamber. Certain lines होती हैं, ठीक है. ये these are more clear when we are using a microscope or when we are using magnification in the form of loops, ठीक है. लेकिन these developmental lines या developmental fusion lines जो होती हैं ना, द पॉइंट वेयर दे टर्मिनेट, यानी जहाँ ये एंड होती हैं वहाँ पे हमारे कैनाल ऑरिफिस पड़े हुए होते हैं. लेट्स सपोज यू हैव prepared an excess cavity and you are unable to find a particular canal, so what you can do, you can follow these lines, ठीक है. you can follow these lines और जहाँ वो एंड हो रही है ना, मोस्ट लाइकली वहाँ पे आपका ऑरिफिस पड़ा हुआ, ठीक है. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को लॉज बताए हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. जी No, sir. ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए एक्सेस कैविटी के? सबसे पहले हमने केरीज को रिमूव करना है, हमने साउंड टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व करना है. बहुत बड़ी एक्सेस कैविटी नहीं बनानी कि हमारा टूथ स्ट्रक्चर ही वीकन हो जाए. अनरूफ दी पल्प चैम्बर, मतलब हमने पल्प चैम्बर में जब एंटर होना है तो उसकी डी रूफिंग करनी है. पल्प चैम्बर का फ्लोर आप लोगों ने देख लिया, पल्प चैम्बर का रूफ भी होती है, तो उस रूफ को हमने कम्प्लीटली रिमूव करना है. रिमूव ऑल दी कोरोनल पल्प टिश्यू, ठीक है. हमने
जितना भी कोरोनल पल्प मैंने आप लोगों को बताया है उसको रिमूव करना है. Locate all the root canal orifices, because if you cannot locate the root canal orifices, you cannot be able to find all the canals. And lastly, achieve a straight line access. मतलब whenever you insert an instrument such as file into the canal, it should go smoothly and in a straight line. किसी किस्म की कोई obstruction नहीं होनी चाहिए. प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आउटलाइन फॉर्म, कन्वीनियंस फॉर्म आती है, रिमूवल ऑफ द कैरियस डेंटिन एंड टॉयलेट ऑफ द कैविटी. सबसे पहले हम आउटलाइन फॉर्म पे आ जाते हैं. ओके, सो डिफरेंट टीथ हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ द एक्सेस कैविटी. अगर आप लोग इस दांत को देखें तो ये ट्रायंगुलर टाइप की एक्सेस कैविटी है. ये आप लोगों को कौन सा दांत लग रहा है, किस दांत की एक्सेस कैविटी हो सकती है? प्रोवाइडेड देयर आर 3 कैनाल्स, 2 इस साइड में हैं. जी, कौन सा? Maxillary first. अच्छा नहीं, मैक्सिलरी फर्स्ट नहीं है. बेसिकली वो मैं आपको मैक्सिलरी फर्स्ट भी आज दिखाऊंगा. मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है. हाँ, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर कह सकते हैं, लेकिन nowadays there has been a modification in the shape of the excess cavity for the mandibular molars. Mandibular molars में it was previously believed कि सिर्फ triangular shape ही बनाई जाती है. Maxillary में तो बनाई जाती है, लेकिन mandibular में भी it was believed. But sometimes we have 4 canals, sometimes we have 5 canals, so we have to extend our excess cavity. Let's suppose अगर हमारा एक distal canal यहाँ पड़ा हुआ है तो दूसरा distal यहाँ हो सकता है. तो sometimes we have a rectangular excess cavity या फिर trapezoidal भी कह सकते हैं. ठीक है, तो basically the outline form, सबसे पहले we make an outline form for the excess cavity, और उसके बाद हम we try to reach the pulp chamber. आहिस्ता आहिस्ता हम जाते हैं deep और हम pulp chamber को approach करने की कोशिश करते हैं. Okay, factors affecting the outline form. अब आप एक डायग्राम देखें, इसमें मुझे ये बताएं इस डायग्राम में और इसमें फ़र्क क्या है? पल्प चैम्बर दिखाया हुआ है दोनों में, फ़र्क क्या पड़ रहा है दोनों में? What is the difference इंक्रीज between? पल्प चैम्बर और छोटा पल्प चैम्बर, कंस्ट्रक्टेड पल्प चैम्बर. क्या मतलब, what could be the reason? क्या हो सकता है? या क्या दोनों पेशेंट्स में फ़र्क है कोई? एक में पल्प चैम्बर इतना बड़ा है. रीजन हो सकता है. मोइज जी एक क्वेश्चन है मेरा इनसे. जी जी बिल्कुल पूछें. इनसे पूछो कि ये ईपीटी में फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव इन दोनों में से किस में आएगा? हाँ, आपको एक हिंट दी है. डॉक्टर अनस ने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि ईपीटी में फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव किस दांत में आएगा? सर फॉल्स नेगेटिव बी में आ सकता है. अच्छा, और फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सर मतलब क्योंकि इसका पल्प छोटा है तो ये फिर इतना इलेक्ट्रिक करंट नहीं पिक नहीं करेगा टेस्ट को. तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों दांतों में? मतलब सर पल्प का, एज का, पल्प चैम्बर का, साइज का. हाँ, पल्प चैम्बर का साइज किस में होता है, किन पेशेंट्स में ज्यादा होता है, बड़ा होता है? अब ये पता होना चाहिए आपको. ये पल्प चैम्बर जी बच्चों में ज्यादा वाइड होता है. वेरी नाइस. बच्चों में बड़ा होता है पल्प चैम्बर, और एज द एज इंक्रीजेस तो पल्प चैम्बर रिसीड कर जाता है, पल्प चैम्बर का साइज छोटा हो जाता है. ठीक है. अच्छा इकरा जी सर. मुझे बताओ कि ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें फॉल्स पॉजिटिव होगा फॉल्स नेगेटिव होगा? सर ये करंट कम देगा तो आई गेस ये फिर फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव ही है सर. कौन सा है सर बता दें. जी डॉक्टर अनस, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं प्लीज. बस ठीक है, कंटिन्यू करो. मैं इनको अगले लेक्चर में पूछूंगा. इनको अभी तक ये फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आया. उस टाइम कह रहे थे सर आगे चले. सर हमें यही पता कि ट्रॉमा में होता है, बाकी बहुत सारी 2-3 चीजें बताई थी मैंने क्लासिफिकेशन में और पल्प सेशन में भी बताया था कि फॉल्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. अच्छा, अब जी सर याद आ रहा है थोड़ा. कोई नहीं, कंटिन्यू. ओके,
तो शेप ऑफ द पल्प चैम्बर, अगर हम शेप पे आ जाएं, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया, तो एंटीरियर्स में मोस्टली वी हैव अ ट्रायंगुलर शेप एक्सेस कैविटी इंसाइजर्स में, ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर्स और लैटरल इंसाइजर्स। इस वक्त मैं इंसाइजर्स की बात कर रहा हूँ। केनाइन में अलग होती है शेप, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आई विल शो यू द पिक्चर। प्रीमोलर्स में वी यूजुअली हैव अ ओवॉइड शेप, ठीक है। मोलर्स में भी आइदर हैव अ रेक्टेंगुलर शेप्ड और ट्रेपेजॉइडल, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप भी कह सकते हैं, लेकिन trapezoidal or rectangular, triangular, depending on the number of canals, because the shape of the pulp chamber dictates the excess cavity. Okay, number and the direction of the root canals. अच्छा, ये आप लोगों को थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये कौन सा दांत लग रहा है आप लोगों को, किस दांत की एक्सेस कैविटी आपको लग रही है, प्रोवाइडेड दैट दिस इज द मेसियल एरिया, दिस इज द डिस्टल एस्पेक्ट, कौन सा लग रहा है जी? सर मल्टीपल लग रहा है। ठीक है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर लग रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द नंबर ऑफ रूट कैनाल्स आल्सो डिक्टेट्स शेप ऑफ द एक्सेस कैविटी। लेट्स सपोज कि एक मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है जिसमें एक ट्रायंगुलर एक्सेस कैविटी मैंने बना दी, ठीक है, लेकिन आई वांट टू फाइंड, आई सस्पेक्ट दैट देयर माइट बी MB2, MB2 यहाँ हो सकता है। ये देखें आप, ये देखें, अगर ये MB2 है और मैंने अपनी एक्सेस कैविटी यहाँ तक बनाई है सिर्फ, ठीक है, ये मैंने एक्सेस कैविटी यहाँ तक बनाई है, लेकिन मुझे MB2 सस्पेक्ट हो रहा है कि यार MB2 यहाँ हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, आई वुड एक्सटेंड माई एक्सेस कैविटी, यहाँ मैं एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, आई एम मॉडिफाइंग द शेप ऑफ माई एक्सेस कैविटी। सर MB2 एक्सरे पे दिखता है? MB2 आपको देखें इन अ पेरीएपिकल एक्सरे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द कैनाल्स, या फिर आपको डिफरेंट एंगुलेशन से एक्सरे लेने पड़ते हैं, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करनी होती है अपनी एक्सेस कैविटी को, और उसमें आपने फिर एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर से चेक करना होता है कि आपको कोई कैच मिल रहा है इस एरिया में या नहीं, ठीक है। दिस इज द मेसियोबकल 1, दिस इज द पैलेटल कैनाल, दिस इज द डिस्टोबकल। तो MB2 भी इट इज समवेयर लाइंग हेयर, ठीक है। मेसियोबकल से पैलेटल में एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसके अराउंड ही कहीं हमें MB2 मिल जाता है। So we cannot rely entirely on the radiograph in order to find a canal, ठीक है। Even after modifying the excess cavity, we suspect any extra canal, we can ask the patient to go for CBCT, because CBCT is a 3-dimensional image, and by interpreting the CBCT we can find the extra canals। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्लाइसेस आ जाती हैं एक ही इमेज की। सर एक्सेस कैविटी को बढ़ाने से पहले हम पहले कैच देखेंगे, अगर वो उधर एक कैच मिलते हैं तो फिर हम वहाँ बढ़ाएंगे। एक्सेस कैविटी को जब आप करते हैं तो एक्सेस कैविटी यू आर नॉट सपोज टू यूज अ हाई स्पीड हैंड पीस फॉर द रिफाइन। उसमें ना आपने फिर हैंड पीस को या तो अपने हाई स्पीड हैंड पीस को स्लो स्पीड पे मूव करें, या फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये होती है, अल्ट्रासोनिक टिप्स होती हैं हमारे पास। वो अल्ट्रासोनिक टिप्स जो होती हैं ना, वो कंट्रोल्ड मोशन देती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हल्की सी ट्रफिंग कर सकते हैं, यहाँ से हल्का सा हम डेंटीन को रिमूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड अ कैनाल, ठीक है। अभी मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर भी दिखाऊंगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। कन्वीनियंस फॉर्म, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कन्वीनियंस फॉर्म। हम एक्सेस कैविटी, sometimes we need to increase the size of an excess cavity in order to improve the visibility and instrumentation, क्योंकि a small excess cavity would obstruct our instruments, ठीक है। तो उसमें हमें कन्वीनियंस फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी ऑल द कैनाल्स, यू कैन सी दिस डेवलपमेंटल फ्यूजन लाइन, यू कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि इसमें प्रॉपर कन्वीनियंस फॉर्म हमने दिया हुआ है, हम हर चीज़ को विजिबल कर, एवरीथिंग इज विजिबल। इफ देयर इज एनी केरीज और इफ देयर आर एनी डिफेक्टिव रेस्टोरेशंस, तो उसको भी हमने रिमूव करना है। एंड लास्टली हमें वी नीड टू क्लीन आवर एक्सेस कैविटी। फॉर दैट वी हैव सर्टेन इरिगेंट्स, वो भी आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा उसके बारे में, ठीक है, कि हम कौन कौन से इरिगेंट्स यूज़ करते हैं फॉर दी क्लीनिंग। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है?
कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सर हैंड पीस है। हाँ, हाई स्पीड हैंड पीस, ठीक है। अच्छा, ये हाई स्पीड हैंड पीस है। ये हमारा एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर है DG16। ये एंडो एक्सप्लोरर होता है, यू गाइस वुड सी दिस इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह व्हेन यू गाइस रिटर्न टू द ऑपरेटिव क्लिनिक। इसे हम कहते हैं DG16 एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर। When we have created our excess cavity, we have entered into the pulp chamber, we insert this endodontic explorer into those areas in which we suspect that हमारे canal orifices होंगे जहाँ पे, तो हम वहाँ पे ना इस endodontic explorer को insert करते हैं and we try to find a catch। हमारा endodontic explorer वहाँ पे हमें हमें catch मिलेगा, जिससे हमें एक suspect हम कर सकते हैं कि यहाँ पे most likely हमारा canal होगा। सर कैच का क्या मतलब है? लाइक कैच उसके का डीप चला जाएगा? कैच का मतलब ये होता है कि आप देखें, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपना ना कहीं पे प्लेस किया और जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करें तो हल्की सी रेजिस्टेंस मिल रही है आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस टू द रिमूवल, हल्की सी रिमूवल, मतलब वो एरिया जो है वो उसको पकड़ के रख रहा है, यानी किसी किस्म की आपको कैच मिल रही है, मतलब उस एरिया ने उसको पकड़ लिया। अच्छा जी, राउंड बर्ड्स हम मुख्तलिफ साइजेस के यूज़ करते हैं, 2, 3 एंड 4। हम डायमंड बर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बाइड बर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द क्लिनिशियन। ट्रांसमेटल बर्ड्स, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि समटाइम्स इफ़ यू वांट टू मेक एन एक्सेस कैविटी इन अ टूथ व्हिच हैज़ बीन क्राउन्ड विद द PFM क्राउन, अगर हुआ है उस पर, तो हम ट्रांसमेटल बर्ड यूज़ करते हैं मेटल पोर्शन को कट करने के लिए। एंड एंडोजीबर, एंडोजीबर इज़ अ सेफ एंडेड बर्ड। इसमें होता ये है कि हम ये जो हमारी एंडोडोंटिक ये जो हमारा बर होता है इसकी टिप सेफ होती है, इट डज नॉट कट, तो हम इजीली इसको प्लेस कर सकते हैं अपने एक्सेस कैविटी में विदाउट डैमेजिंग दी पल्पल फ्लोर। मतलब ये साइड से तो कट करेगी लेकिन टिप से कट नहीं करेगी। अच्छा जी, अल्ट्रासोनिक, देखें आप लोगों ने अल्ट्रासोनिक्स यूज़ किए हैं वो वाले जो हम लोग स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक्स आर आल्सो यूज्ड इन एंडोडोंटिक्स, ठीक है। इसकी ना सर्टेन अल्ट्रासोनिक टिप्स होती हैं, इस अल्ट्रासोनिक टिप्स से हम अपने ना एक्सेस कैविटी को रिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें से वाटर भी निकल रहा होता है, इसमें से ये दीज टिप्स वाइब्रेट एट एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमारी यूज़ होती है फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ एक्सेस कैविटी। सर इसके फंक्शन में जो पल्प स्टोन होता है उसको रिमूव करना और एंडोडोंटिक एक्टिवेटर जो होता है वो सेम, इसके फंक्शन क्या आएगा? जी, एंडोडोंटिक एक्टिवेटर और वो सब कुछ ना आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इरिगेंट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। और जहाँ तक बात है पल्प स्टोन का रिमूवल, तो यस वी कैन यूज़ दिस अल्ट्रासोनिक टू रिमूव द पल्प स्टोन्स, ठीक है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हैं और हम उसके पल्प स्टोन्स को वी कैन फ्रेगमेंट द पल्प स्टोन्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट दे कैन बी इजीली रिमूव्ड, ठीक है। उसके लिए हम हाई स्पीड हैंड पीस मूव नहीं करेंगे बिकॉज इट वुड डैमेज द पल्पल फ्लोर एंड इट वुड डैमेज द एक्सेस कैविटी and it would also lead to perforation. Ultrasonics are also used in the activation of the irrigants, and that would be explained in the next lecture. Irrigants वाला में आप लोगों को मैं explain करूँगा, and I would also show you the videos. Magnification is very important nowadays. In the foreign countries, endodontics is usually performed under operating microscope, surgical operating microscope. But if we do not have a microscope, we can use dental loops, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर टीथ में मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रायंगुलर शेप एक्सेस कैविटी होती है। दिस इज द इंसाइजल एरिया, दिस इज द सर्वाइकल एरिया। तो हमारे जो ट्रायंगल होता है ना उसकी बेस इंसाइजल पोर्शन में होती है, एपेक्स उसकी सर्वाइकल पोर्शन में होती है। तो इस तरह की हमारी सेंट्रल इंसाइजर्स और लेटरल इंसाइजर्स में इस तरह की हमारी एक्सेस कैविटी होती है।
सबसे पहले वी गेन एन एंट्रेंस थ्रू द मिडल थर्ड ऑफ द पैलेटल सरफेस, ठीक है। अगर इफ वी डिवाइड द पैलेटल सरफेस इनटू 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3, तो इसके जो मिडिल थर्ड है वहाँ पे हमने एंट्रेंस गेन करनी है, मतलब वहाँ पे हमने एक्सेस कैविटी बनाना शुरू करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बर इज प्लेस्ड perpendicular to the long axis of the tooth at a 90-degree angle. After 1.5 to 2 mm, what we do, we adjust the angulation of our burr और उसको हम along the long axis कर देते हैं। Initially हमने entrance gain की by placing a burr at a 90-degree angle, और उसके बाद हमने इसको perpendicular कर दिया। यहाँ तक समझ आइए सबको? ये देखें, एंट्रेंस गेन की, पल्प चैम्बर में आ गए, उसके बाद हमने अपनी बर की पोजीशन, बर को भी चेंज कर दिया हमने, और बर की पोजीशन को एट द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ कर दिया, और उसके बाद हमने अपनी फाइल प्लेस कर दी इनटू द कैनाल। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? जी मरियम सज्जाद, मैंने क्या बताया? बताएं मुझे जल्दी से।